Hello everyone, welcome to Aptiplex Academy for Civil Services. This is a video on daily news and editorial analysis which I'll be covering from the two important newspaper, and the coverage would be such so that it can help you both in prelims and mains examination. So without any further ado, let's get started with the topic first. Today is 30th of August. The first topic is India-Russia to expand Central Asia ties. Second, China new rule to regulate the foreign ship to its water. Basically, it's talk about the South China Sea. Third, Niti Aayog recommend takes break for the monetization goal. Second last, activists raise concern over oil palm proposal. And the last is an editorial towards a human police force. So this is the editorial from Hindu. Mostly the newspaper that I'm covering, the topics that I'm covering is from the Hindu itself. And at the end of this video, there would be some MCQ based questions. These questions would be based on current affairs that will help you in the upcoming prelims examinations. So let's get started. And those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Aptiplex Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, do not forget to give a thumbs up. Starting with the first news, that is India-Russia to expand Central Asia ties. This news is important for General Studies Paper 2, bilateral regional grouping and agreement involving India and affecting India's interest. As you know that India and Russia has a healthy relationship. The bonding between India and Russia is very good. So the both countries trying to strengthen their relationship in terms of having next another meeting with the Russia defense minister. So to understand what is the detail of this news, रिसेंट में अपकमिंग डिफेंस मिनिस्टर की विजिट होने वाली है इंडिया में, एंड द इंटायर एम इज टू एस्टैब्लिश अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द बोथ कंट्रीज, राइट. बोथ कंट्रीज मीन इंडिया एंड रशिया. तो दोनों साइड ने कोशिश की है कि अपने कोऑपरेशंस को बढ़ाया जाए, एंड द फोकस शुड बी देयर इन द सेंट्रल एशिया. द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग द बायलैटरल एक्सरसाइज जो बायलैटरली भी हो और मल्टीलैटरल फोरम पे भी रिप्रेजेंट करे दोनों कंट्रीज को, राइट. And talking about the benefits that we're getting from Russia, अभी रशिया ने recently S-400 missile system देने की बात की है, S-400 Triumph missile system. So talking about all the import of the basically जितने भी logistics हैं, या फिर बात करें आर्मी में जितने भी अभी हमारे guns यूज़ किए जाते हैं, mostly 70% is being imported from Russia. So Russia has in terms of defense, India's defense, they have a lot of contributions. नाउ एक्सपैंडिंग द कोऑपरेशंस, इंडिया और रशिया ने बात की है कि वो एक्सपैंड करेंगे अपने बायलैटरल टाइज को कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स पे, दैट इज ऑन लॉजिस्टिक्स, नेवल कोऑर्डिनेशंस, एंड द एग्रीमेंट कॉल फॉर थ्री इंपॉर्टेंट डायमेंशंस, राइट. द फर्स्ट इज बायलैटरल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट. सेकेंड जो है एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, जिसको RELOs भी कहते हैं, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स. थर्ड इज नेवी टू नेवी कॉपरेशन. यहाँ पे एक MOU साइन होनी है, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ इंडिया एंड रशिया. एंड बोथ कंट्रीज हैव ऑल्सो शेड्यूल्ड टू होल्ड अ मीटिंग 2.2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग व्हेन द defense minister of the defense minister of Russia is visiting India, right. So this is something to create another level of advancement in terms of India and Russia's relationship. अफगानिस्तान क्राइसिस पे भी बात होनी है. कहा गया कि जिस तरह से फास्ट चेंजिंग डेवलपमेंट हो रही है अफगानिस्तान में, दैट हैज़ रेज्ड कंसर्न फॉर बोथ द कंट्रीज, राइट. एंड इट वाज इम्पेरेटिव, ये ज़रूरी है, ये दिस इज द नीड ऑफ द आवर, दैट इंडिया एंड रशिया बोथ कंट्रीज शुड अडॉप्ट देयर पॉलिसीज, एंड वॉट एवर देयर पॉलिसी मस्ट बी देयर इन द पास्ट, नाउ दे नीड टू चेंज इट, टू रिवैम्प इट, टू ऑगमेंट इट, सो दैट जो तालिबान के फोर्सेज हैं उनको कंट्रोल कर पाए. और तालिबान किसी भी तरह से नेगेटिव वे में इंडिया में अगर काम करती है, ऑपरेट करती है विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान, सो दिस वुड बी समथिंग दैट वुड बी टेकन इनटू द foremost priority by the government of India. And definitely Russia would be aiding in these efforts because they also want कि सेंट्रल एशिया में पूरी तरह से स्टेबिलिटी बनी रहे. Now, China new rules to regulate foreign ship and its water. This is something which is important for your general studies paper 2. Effect of policies and politics for the developed and developing countries, right? Now, what is this? Talking about the relevance of this news, this talks about the dominance of China in the South China Sea, right? जो South China Sea है, उसमें खास करके SCS, the South China Sea is something which we find that China is having a dominance over there. Now,
in light of that only, the territorial water that was being literally called that they are having the power in that, they're regulating something on this part, right? So let's understand. Chinese authorities ने कहा है कि recently they will be requiring all the vessels, खास करके जो range of vessels वहाँ से travel करते हैं साउथ चाइना सी में, उसके लिए उनको अब information चाहिए होगी whichsoever is passing through the China seas, right? और चाइना ने कहा है कि जो भी टेरिटोरियल वाटर चाइनीज के अंदर आती है उसमें वो वहाँ से अब कुछ रिपोर्ट और इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे. सो दिस वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम September 1. So the move could have a ramifications of the free passage of both military and commercial vehicle. तो ये एक तरह से आप समझ सकते हो साउथ चाइना सी में बेसिकली चाइना ने अपने डोमिनेंस बढ़ाने की कोशिश की है बाय हैविंग अ रिपोर्ट, और यू कैन से by having a exercise, or you can say by having a level of dominance in the region. Basically एक तरह से आप जिस तरह से टोल टैक्सेस होती हैं रोड्स पे, so it is like that only, right? So let's see how basically all other country would be appreciating this. So this is a map which will help you understand कि किस तरह से जो साउथ चाइना सी में कुछ important countries हैं. The red line shows that the claim which was made by the China. These are the claim that China has made, right? And the other countries talking about this green, this you can see the blue in color, ocean blue color. This is the exclusive economic zone, right? So the adjacent country or surrounded country by the South China Sea, this entire region is South China Sea, right? So the country include Philippines, Indonesia, Malaysia, okay, and Vietnam. So these are the important countries that have a dispute with China with regards to the South China Sea. Now ट्रेड वैल्यू की बात करें साउथ चाइना सी में स्पेसिफिकली जो पूरी ट्रेड है दैट इज अराउंड 5 ट्रिलियन की ट्रेड है. यू नो इंडिया इज चेजिंग अ टारगेट टू बिकम अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी. और अगर बात करें एस्टिमेशंस की तो यहाँ पे इंडियन मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि 55% ऑफ द इंडिया ट्रेड पास थ्रू द वाटर्स एंड थ्रू द मलक्का स्ट्रेट्स. तो मलक्का स्ट्रेट्स के जो मैप वर्क हैं वो आप देख लें. प्रीलिम्स के लिए यहाँ पे चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपके लिए. Now the China claim that जो 9 dash line होगी चाइना की, right, that is very significant for चाइना के साउथ चाइना सी के लिए. and several dispute जो countries मैंने आपको बताया मैप में that include Philippines, Vietnam, Malaysia and Indonesia, they find that China is having exclusive right and they're not giving an option to these countries to operate in this region. न्यू रूल एप्लीकेबिलिटी की अगर बात करें किस तरह से ये एप्लीकेबल होगी तो ये भी क्लियर नहीं है कि चाइना की क्या कोशिश है, किस फोर्स से वो ऑपरेट करेगी, क्या रेगुलेशंस होंगे. दे हैव जस्ट सेड कि फ्रॉम September 1st दे वुड बी हैविंग द पेपर वर्क और दे वुड बी गेटिंग द नोटिस whosoever is passing from that route, right? एज द मरीन सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें उन्होंने कहा है कि कुछ इन्फॉर्मेशन वो लेंगे जो भी वेसल्स जो चाइनीज टेरिटरी ऑफ वाटर में आएंगे. सो दैट इंक्लूड ऑपरेशन ऑफ सबमर्सिबल्स, जो भी न्यूक्लियर वेसल्स होंगे उनके, शिप्स कैरिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल, शिप्स कैरिंग बल्क ऑयल्स और केमिकल लिक्विफाइड गैस एंड अदर टॉक्सिक and harmful gases, right? So this sort of these category of vessels passing through the Chinese territory would be taken into consideration by the Chinese authority. Now the vessel will also have to submit the information on nature and cargo deadline है, जो कार्गो की जो डेड वेट है उसके बारे में भी उसको बतानी होगी. So it is more of information sharing that what you are taking, what is the weight, that would be shared with the Chinese authorities. Now 9 dash line की अगर बात करें, 9 dash line जिसको चाइना ने अभी तक कहा है कि वो उनके रीजन में आती, बट ये इनकंसिस्टेंस है जो अनक्लोज की जो रूल्स है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑन सीज उसके खिलाफ है. एंड इट गिव द स्टेट्स टू एस्टैब्लिश अ टेरिटोरियल सी राइट अप टू 12 नॉटिकल माइल्स. तो इसमें जो आप अगर अनक्लोज के लूज के हिसाब से देखोगे तो 12 नॉटिकल माइल्स तक ही अलाउड की जाती है, बट चाइना ने उससे ज़्यादा डोमिनेंस ले रखी है उस रूट पे. So the requirement to the notice would have to be seen by the consistent with UNCLOS, which states that the ship of all the countries have equal right, right? जो rules है उसके मुताबिक every country can enjoy the right that pass through the territorial seas. So if you talk about the 9 dash line, I wanted to show you a map. You can see these are the 9 dash line. If you count from here, it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9.
So these are the 9 dash line that China claims कि these are their basically China territory. You can see in the index over here, right? और जो UNCLOS के rules हैं वो इन सारे routes पे fair transitions की बात करती है, right? And these islands, this you can see the yellow one, the round one, are the disputed one, right? Hope things would be clear to you with this map. Now coming to the other news, Niti Aayog recommend takes back for the monetization goal, something which is important for General Studies paper 2, government policies and intervention for the development of various sectors. नीति आयोग ने रिसेंटली रिकमेंड किया है कि जो नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान और पाइपलाइन आप कह सकते हो जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च की थी, उसके सक्सेस के लिए गवर्नमेंट को टैक्स ब्रेक देने की ज़रूरत है। किन लोगों को टैक्स ब्रेक देने की ज़रूरत है और इससे बेनिफिट क्या होगी? तो नीति आयोग ने कहा कि अगर टैक्स ब्रेक दी जाए तो इट वुड अट्रैक्ट द रिटेल इन्वेस्टर्स इनटू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जो INVITs है, ITs हैं, उनमें खास करके जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट की जा सकती है अगर गवर्नमेंट टैक्स ब्रेक देती है तो। एंड नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन इज एस्टिमेटेड टू रेज अराउंड 6 लाख करोड़। Needless to say, I have already discussed these news before, twice or thrice we have discussed, but just to tell you the brief idea क्या क्या बातें हुई हैं। इसमें एक्सचेकर को 6 लाख रुपए के आसपास मिलेगी in the time span of 4 years, right? So these are the anticipation that government has targeted. एंड इट इज़ बीइंग सेड कि जो खास करके जो ट्रस्ट होंगे उनको IBC जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है उसके जो रूल्स हैं काफ़ी टफ हैं, उसके एम्बिट से बाहर रखा जाए ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो कंफर्टेबली अपनी खास करके जो योगदान है, यू कैन से द पार्टिसिपेशन कुड बी देयर इन द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। पॉलिसी और रेगुलेटरी चेंजेस की बात की गई है तो नीति आयोग ने रिकमेंड किया था कि देयर नीड टू ब्रिंग रेगुलेटरी चेंजेस टू स्केल अप द मोनेटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं जैसे जो INVITs हैं और जो रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं REITs, इन दोनों को इसमें इस तक एक्सपैंड करने की ज़रूरत है ताकि जो इन्वेस्टर बेस है उसको बढ़ाया जा सके, राइट? सो क्रिटिकल एलिमेंट इज दैट द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन शुड हैव मोर एंड मोर retail investor in INVITs and the real estate investment trust. तो गवर्नमेंट की अपनी प्लान है टू यूज बोथ ऑफ देम रूट, दोनों रूट को गवर्नमेंट यूज करेगी। और जो पब्लिक एसेट्स है जिसको मोनेटाइज की जानी है दैट इंक्लूड हाईवे, गैस पाइपलाइन, रेलवे ट्रैक एंड पावर ट्रांसमिशन। आई हैव ऑलरेडी शोन यू अ मैप जहाँ पे मैंने आपको बाइफर्केशन दी थी कि 6 लाख करोड़ रुपीज़ के लिए गवर्नमेंट ने किस किस सेक्टर्स में कितने कितने जगह पे जनरेट करने की कोशिश की है और गवर्नमेंट ने क्या क्या टारगेट सेट किए। इफ यू नॉट वॉच दैट वीडियो, डू चेक इट आउट, यू कैन फाइंड दैट वीडियो इन द प्लेलिस्ट सेक्शन ऑफ आवर यूट्यूब चैनल। नाउ एक्सटेंडेड IBC प्रोविजंस टू INVITs, यहाँ पे एक्सपर्ट्स ने कहा, उनकी ओपिनियन है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है उनके स्ट्रक्चर्स को देखा जाए तो regulations are very crucial because regulation would promote the transparency and the easy regulation, the less red tapeism would call and attract more and more retail investor, right? तो retail investor ज़्यादातर reluctant होते हैं इस तरह के चीज़ों में पार्टिसिपेशन में, बट अगर हमें उसे पार्टिसिपेट करानी है तो जो टैक्स रेट कट की बात की गई है वो टैक्स ब्रेक और खास करके जो नॉर्म्स है, जो प्रोसीजर्स है उसे हमें कम करने की ज़रूरत है सो दैट द एक्टिव पार्टिसिपेशन शुड बी देयर इन द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एंड मोर रिटेल इन्वेस्टर शुड कम इन टू प्ले। एंड INVITs के जो स्ट्रक्चर है दे वुड गिव इन्वेस्टर एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट और प्रिडिक्ट द कैश फ्लोज, राइट? सो गवर्नमेंट ने एक तो पहली बात है रूल्स ले आई है, एक ब्रॉड रूल ले आई है, अब उसको एग्जीक्यूट करना इज अ बिगर टास्क। सो दैट इज वाई नीति आयोग is having their opinion in terms of making this program success. कैपिटल गेन ऑफसेट्स की अगर बात करें तो सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट में दैट इज सेक्शन 54 EC, उसके मुताबिक जो टैक्स पेयर हैं उनके जो ऑफसेट लॉन्ग टर्म गेन्स हैं, ट्रांजेक्शन खास करके जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, इन्वेस्टमेंट इन द बॉन्ड इशूड बाय सम गवर्नमेंट एंड द बैक्ड बाय द इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म्स, राइट? तो यहाँ पे ऑफसेट टर्म्स है लॉन्गर ड्यूरेशंस में and these long term benefit may outweigh the cost of linkaging investment। खास करके जो ऐसे स्पेसिफिक बॉन्ड्स हैं या फिर कैपिटल गेन एग्जेम्पशंस है वहाँ पे भी कैपिटल गेन ऑफसेट्स के जो क्लॉजेज हैं सेक्शन 54 EC से उसके थ्रू भी रिटेल इन्वेस्टर्स को बेनिफिट दिए जा सकते हैं, राइट? सो दिस वुड मोटिवेट मोर एंड मोर रिटेल सेक्टर
to participate in the national monetization pipeline recently introduced by the government of India. जितनी भी मैंने आपको बातें कही हैं, दैट इज उसके समअप जो समराइज आप बोलोगे ये यहाँ पे है विद दिस इन्फोग्राफ. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं. गेल एंड NHAI एक्सपेक्टेड टू अनवील INVITs to monetization gas pipeline assets soon, or providing an insolvency option would be added to convert the investors. So these are some of the important pointers that is mentioned in this infograph. Now, activists raised concern over oil palm proposal. We have recently discussed जो government ने national oil policy लेकर के आई थी regarding the oil palm. Now उसमें कुछ activists ने concern raise की है. So this is important for your general studies paper 3, concerns regarding the environmental pollution degradation EIA. So let's understand what the activist has to say. तो जिस तरह से डिस्ट्रक्शंस की बात की गई है रेन फॉरेस्ट को लेकर के, बायोडाइवर्सिटी में जो ऑयल पाम की प्लांटेशन है साउथ एशिया में, उसमें कुछ इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स ने ये बात कही है कि यूनियन गवर्नमेंट ने जो रिसेंट मूव दिखाई है, जो रिसेंट डिसीजन ली है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, खास नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स प्लस अंडमान स्टेट्स में, प्लस अंडमान एंड निकोबार में जो डिसीजन ली गई है ऑयल पाम प्लांटेशंस के लेकर के, ये काफ़ी ज़्यादा डिजास्ट्रस हो सकती है, राइट? ऐसा कहना है एक्सपर्ट्स का. सो द सेंटर हैज़ रिसेंटली प्लान टू प्रमोट ऑयल पाम प्लांटेशन इन द नॉर्थ ईस्ट प्लस द अंडमान एरियाज. सो लेट्स सी हाउ मच वैल्यू इज बीइंग इम्पोर्टेड. अगर बात करें इम्पोर्ट वैल्यू की, सो 8.03 मिलियन टन जो है ये इंडिया इम्पोर्ट करती है. एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन सम इम्पॉर्टेंट कंट्रीज. पाम ऑयल अगर की बात करें, सो इंडिया कंज्यूम मोस्ट ऑफ द चीप एंड वर्सेटाइल ऑयल. सो यहाँ पे वॉल्यूम इंडिया के आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा है, फॉलोड बाय इंडोनेशिया, चाइना, मलेशिया एंड यूरोपियन यूनियन. सो दीज आर द टॉप 5 कंट्रीज, राइट? अब बात करें ऑयल पाम की. ऑयल पाम है क्या? आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. सो ऑयल पाम इज़ एन इन्वेजिव स्पीसीज. बहुत इकोलॉजी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जो इन्वायरमेंट के सेक्शन है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो व्हाट इज इन्वेजिव स्पीसीज? आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो. इन्वेजिव स्पीसीज उस स्पीसीज को कहते हैं जो कि डिलिबरेटली या एक्सीडेंटली आउटसाइड से इनसाइड नेचुरल एरिया में उनको लाई जाती है और वो इकोलॉजिकल बैलेंस को कहीं ना कहीं अपसेट करती है. तो इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा है. नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस इज हाई. सो पाम ऑयल इज करेंटली द वर्ल्ड मोस्ट कंज्यूम वेजिटेबल ऑयल. बात करें, इट इज़ बीइंग एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शंस ऑफ डिटर्जेंट, प्लास्टिक्स, कॉस्मेटिक्स एंड बायोफ्यूल्स. तो इसी इन्वेजिव जो कॉन्सेप्ट है स्पीसीज की वजह से जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कंसर्न रेज किए हैं कि इसको गवर्नमेंट को विड्रॉ करनी चाहिए इस डिसीजन को. सो टॉप कंज्यूमर ऑफ द कमोडिटी इज इंडिया, चाइना एंड यूरोपियन यूनियन. नाउ कंसर्न्स लेटर लिखी गई है प्राइम मिनिस्टर को. तो मेघालय के एक MP है, उनका कहना है कि जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है और जो इकोलॉजिकल फ्रेजाइल मोमेंट क्रिएट हो सकती है बाय प्लांटिंग palm plantation, and it can denude the forest cover and destroy the habitat of endangered wildlife. So this is a one point of concern that has been raised. The second point of concern that was raised by the former union minister Mr. जयराम रमेश ने कहा है कि ये जो प्रपोजल है लार्ज स्केल ऑयल पाम कल्टिवेशन की, इट कैन बी रिजेक्टेड, क्योंकि बिकॉज जो एक्सपर्ट की ओपिनियन थी उन्होंने भी इसे टेक्नोलॉजी मिशन में एलिमिनेट किया था 1980s में ही. And he says that this is a recipe of ecological disaster, right? So experts are of the opinion that government should withdraw it and they should not continue. But government ने अपने ही कुछ experts के साथ उन्होंने भी कुछ अपने डेटा को एनालाइज किया, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट को जिस तरह की पॉलिसीज लेकर के आती है तो उनकी बैकिंग होती है, राइट? दे कंसल्ट विद द एक्सपर्ट. बट व्हाट गवर्नमेंट हैज टू से, लेट अंडरस्टैंड. गवर्नमेंट ने जो डिसीजन को बैक किया, द यूनियन गवर्नमेंट सेड कि इट्स प्रोसीडिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ साइंटिफिक एनालिसिस. गवर्नमेंट ने कहा कि हमने भी इसकी साइंटिफिक एनालिसिस करवाई है, देन ओनली वी हैव कम अप विद द प्लान. और एक स्टडी की गई थी इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, जिन्होंने रेकमेंड किया था 28 lakhs hectare of plantation to be done. This is to be on the area out of which 9 lakh hectare to be there in the northeastern states. So they have get the backing from the Indian Council for Agriculture Research. और palm oil की अगर बात करें, currently this is whooping of 55% of India's
ऑयल इम्पोर्ट, जितनी भी ऑयल इम्पोर्ट होती है तो सबसे ज़्यादा पाम ऑयल आती है. एंड द मिशन इज इंटेंड टू मूव टूवर्ड्स द डोमेस्टिक प्रोडक्शंस एंड सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री. तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हमारी कोशिश है कि जो इम्पोर्ट है, खासकर जो इम्पोर्ट की जा रही है इस सेक्टर में, इम्पोर्ट को कम किया जाए एंड वी शुड मेक इंडिया मोर सेल्फ रिलायंट इन टर्म्स ऑफ ऑयल प्रोडक्शंस ऑफ द पाम ऑयल, राइट. तो इसी वजह से इन्होंने प्लांटेशंस की बात की है. बट एक्सपर्ट का कहना है कि इन्वेजिव स्पीसीज जो ऐसे हैं वो वहाँ की इकोलॉजिकल इकोसिस्टम को खराब कर सकती है. तो इफ़ यू बीइंग आस्क्ड इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, आपकी स्टेटमेंट पे डिपेंड करेगा कि कौन से करेक्ट ऑप्शन होंगे. आपको दोनों व्यू समझना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं. नाउ लेसन्स फ्रॉम द इंडियन स्टेट एंड श्रीलंका. बात करें श्रीलंका में भी कुछ ऐसी एक्सरसाइज की गई थी जिससे पाया गया कि जो ऑयल पाम इंडस्ट्री है वो डिस्ट्रॉय होती है, इसको डिस्ट्रॉय किया गया एंड इट हैज़ रेज्ड, बेसिकली बैंड लगाई गई है ऑयल इम्पोर्ट पे, इस तरह के जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है. और इससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है प्लांटेशन क्रॉप में वो उन्होंने कहा था कि बढ़ती है. बट अल्टीमेटली जब इन्वायरमेंटल पर रिकरपर्शंस हो रहे हैं तो उसके अलावा फिर आगे बढ़ा नहीं जा सकता, राइट. And it shows that becoming an invasive species and threatening to the native plant and animal, this is something which is not great for the environment. And in the part of the peninsular India which already grow oil palm, they have a mixed response. तो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा इसके लिए advocacy नहीं की गई है and many people are reluctant, even the opinion are not, जो लगाने वाले की तरफ जो strength है, जो इनके support में है, उनकी भी strength ज़्यादा नहीं. So this is a tie whether, let's see how government is coming, whether the government would have consultation with an expert committee, कोई expert committee बनाई जाती है जो recommendations देती है, या फिर government इसको directly implement करेगी. We have to see over the time. Now towards a more human police force, this is something which is important for your general studies paper 2, functions and responsibility of union and state. Also अब इसी पेपर में जनरल स्टडीज के पेपर 2 में जो vulnerable section of populations है उनमें भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकती है. सो क्या डिस्कशन की गई है इस एडिटोरियल में? फर्स्ट इज रिगार्डिंग द डेथ इन द पुलिस कस्टडी, मेजर्स टू बी अडॉप्टेड, अरेस्ट मस्ट बी जस्टिफाइड, promotion of transparency in investigations and way forward. If you talk about the theme of this editorial, so this editorial talk about human right and death in the police custody. So recently Chief Justice of India जो हैं उन्होंने अपनी कंसर्न को एक्सप्रेस किया था and he said that the violation of human right is there mostly in the police stations, right? So this remark was given by the CGI himself and he said the threat to human right and bodily integrity is highest in the police stations, the local police stations, right? So after this a debate has arisen that whether or not an arrest is required in particular case, that should be required only in the exceptional case where there is a danger कि जो accused है उसकी भागने की खतरा या फिर वो उस केस से दूर जा सकता है, he can escape out, right? So उसी केस में अरेस्ट की जानी चाहिए. So death and police custody की बात करें, we have a record from the National Crime Record Bureau that reveal कि जो custodial death है, about 100 custodian deaths were taking place in 2010 to 2019. This is the report from the NCRB. जाहिर सी बात है अब रिपोर्ट से नंबर्स को थोड़ा प्लस लेके ही चल सकते हैं, बट दिस इज द ऑफिशियल फिगर, राइट. आउट ऑफ देम 3.5% हैव एलिज्ड कि जो डेथ हुई है उसमें कुछ लोगों के इंजरीज की वजह से हुई है. 8 of 6% of them have died because of the escaping in the custody. 28.1 died due to suicide and rest of them died due to illness and various other reasons, right? Now death की अगर बात करें, death in the police custody have indeed grew a matter of concern not only for the judiciary but also for the human right activists. So each of that must be seriously inquired और इसके लिए ज़रूरी है कि जो ट्रुथ है वो बाहर है. क्या क्या मेजर्स हैं जो अडॉप्ट किए जा सकते हैं? सो foremost measures to be reduced instances of custodial violence is to reduce the number of arrest. जो अरेस्ट है उसकी नंबर हमें कम करने की ज़रूरत है, बिकॉज जब भी अरेस्ट होगी सो पुलिस अपने हिसाब से उसको कस्टडी में लेती है एंड दैट इंट्रोगेशन इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम दैट इज अगेंस्ट द ह्यूमन राइट, राइट. सो ऐसे लॉ में कही गई है कि कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनमें ये ज़रूरी है कि उनको अरेस्ट करना ज़रूरी है, जहाँ पे एविडेंस को वो एक्यूज टैम्पर कर सकता है या फिर
he can escape away, in that particular condition only the arrest should be made, right? एंड परमवीर सिंह वर्सेस बलजीत सिंह ये 2020 की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें डायरेक्ट किया गया था स्टेट्स को टू कवर मोर एंड मोर पुलिस स्टेशन अंडर सीसीटीवी कैमरा, ताकि जो वहाँ की स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं उनके थ्रू ये पता चल जा सके कि कैसी बिहेव हो रही है, और ये ऑडियो वीडियो की जो रिकॉर्डिंग है वो कम से कम 18 महीने तक वैलिड होनी चाहिए. इट शुड बी रिजर्व फॉर 18 months एट लीस्ट. सो दिस इज वॉट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड इन द परमवीर सिंह वर्सेस बलजीत सिंह. Arrest must be justified. This is the first question that was also being given by the Supreme Court. तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स में ये कहा है कि अरेस्ट को जस्टिफाई करने की ज़रूरत है. अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये कहा गया था कि जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेज हैं, खास करके सेक्शन 498A में जो इंडियन पिनल कोड कहती है विच रिलेट्स टू द टॉर्चर ऑफ डॉरी, तो इसमें अरेस्ट जो है वो मैंडेटरी नहीं है सेक्शन 41 CRPC के मुताबिक, राइट. अगेन दिस अनदर केस विच इज एक्शन फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. यहाँ पे कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि पुलिस ऑफिसर मस्ट फर्निश द मजिस्ट्रेट, उनको मजिस्ट्रेट को ये बताना होगा कि किन कारणों से, क्या ऐसी नेसेसिटी है जिनकी वजह से वो उस इंडिविजुअल को अरेस्ट कर रहे हैं, डिटेन कर रहे हैं, राइट. बिकॉज अटेंशन जो अरेस्ट है उसकी वजह से ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, राइट. सो पर्पस ऑफ दिस इज टू चेक एंड इंश्योर दैट पुलिस डज नॉट एब्यूज द पावर ऑफ अरेस्ट. जो पुलिस की जो पावर ऑफ अरेस्ट है उसको कम करना और उसके जो खास करके जो मिसयूज है उनको रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है. नाउ प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी इन इन्वेस्टिगेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट कमीशंस इस्टेब्लिश हुए हैं, जैसे नेशनल पुलिस कमीशन है, लॉ कमीशन अपने 155 रिपोर्ट में, उसके बाद मलिमत कमिटी एंड प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. प्रकाश सिंह इज अ फॉर्मर DGP ऑफ उत्तर प्रदेश एंड इज वर्किंग कमेंडेबली फॉर द पुलिस रिफॉर्म. अगर एक इंसान की नाम अगर आपको लेना हो एग्जाम में कि किसने पुलिस रिफॉर्म पे सबसे ज़्यादा काम किया हुआ, तो एक सिंगल नाम हो सकता है प्रकाश सिंह, राइट. इज अ ब्रिलियंट मैन, एन IPS ऑफिसर हु इज डूइंग ग्रेट वर्क, राइट. उन्होंने रिकमेंड किया था कि जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर्स हैं उनमें और जो खास करके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं वो दोनों में डिफरेंस होनी चाहिए, दोनों अलग अलग लेवल के ऑफिसर्स होने चाहिए, ताकि जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनमें अच्छी तरह से एक लॉ ऑफ ऑर्डर और जो पुलिस है उसको मेंटेन किया जा सके, राइट. तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द लॉ एंड ऑर्डर पुलिस, राइट. तो दोनों में डिफरेंस होना चाहिए. ये रिकमेंडेशंस आई हैं इन सारे कमीशन से. दो द एफर्ट्स हैज बीन मेड टू पुट सम स्टेट्स इन द डायरेक्शंस, बट अभी भी जो कोर्ट की डायरेक्शन है वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुई है. स्टेट्स अपनी एफर्ट्स पे हैं, बट वी कैन नॉट से दैट दिस इज फुल्ली इम्प्लीमेंटेड. Now, what is the way forward with this type of question answer? I mean, basically topic you can say. तो custodial death के लिए ज़रूरी है. Basically, it's perhaps one of the worst crime in the civilized society by the rule of law. और पुलिस ऑफिसर must know their mandate, किस तरह से उनको ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करनी है और ह्यूमन राइट की वॉल्यूशंस नहीं की जानी चाहिए. एंड द गिल्टी मस्ट बी पनिश सीवियरली फॉर द मिसकंडक्ट एंड द क्रिमिनल एक्ट, राइट. एक तरह से डेथ है तो इसमें मर्डर का ही केसेस बनता है. And the Home Ministry has recently linked the police modernization scheme with the police reform. So MHA is working, but we do not know how and when the execute proposal would be coming into action. And much need to be taken, जहाँ पे custodial violence को हमें कम करने की ज़रूरत है और जितने भी efforts हो सकते हैं वो लगाने की ज़रूरत है, ताकि जो violence है उसको पूरी तरह से कम किया जा सके. And human right should be given the foremost priority when it's come to the deal with the any suspected or accused person, right? Now coming to the MCQ questions of the day. Before I proceed, just to tell you the answers of Saturday question. For the first question, the correct option would be C. For the second, the correct option is B. Now, today's MCQ questions. The New START treaty, recently seen in the news, is a treaty between which among the following countries? India, Japan, India, Russia, India, USA, with Russia and USA, or Japan and Russia. So if you know the correct answer, do let me know in the comment section down below. Second, the National Center for Sustainable Coastal Management is located in New Delhi, Chennai, Gurugram, or Hyderabad. This is an important question, possibly would be asked in examination. So let me know how many of you know the correct answer in the comment section down below. So this was all about the daily news and editorial analysis followed by the MCQ questions. If you have any other concern,
Do let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Thank you so much for listening.